हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। क्लास 11वीं CBSE NCERT सोशोलॉजी है, यानी समाज शास्त्र के हमारा चैप्टर जो आया है प्रयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग, ये कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो लाया है पॉइंट व्यू, यानी पॉइंट व्यू का अर्थ होता है कि आपके जो चैप्टर के सिलेबस हैं उसके अंतर्गत सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस की जाएगी, वो भी आसान शब्दों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि आपको इसको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में बताने की कोशिश किया जाएगा, जो काफ़ी महत्व रखेगा। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ऊपर से पॉइंट व्यू रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये सब पॉइंट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, term concept and their use in sociology. Class 11 CBSE NCERT sociology here. You know that's the most important chapter, term concept and their use in sociology. The next point arrive here that is important, and point here is status and role. The status and role that is important for here. Status is referred to be a position on individual occupy in a group or in a society. That's important. It is status and role. The status is referred to the position in the individual occupy in a group or in a society. Each status has a contain a defined right and duty assigned to it. Example of status: there is a doctor, mother, teacher, etc. You know that's important. Example here: status, doctor, mother, teacher, etc. Status is of two types: ascribed status and achieved status. That's important here. Let's see in a detail. There is status in two types here. The first type that's important, achieve status. You know that achieve status is important. It is achieved by an individual on a merit and effort. You know that's important. The individual on the merit and efforts here. And the next, it is based on individuals as to choose. That's the most important achieve status here. And it can change qualification, income, etc. That's achieve status here. It can change qualification, income, etc. here. And it's play an important role in a modern society. You know that's important. The important role is a modern society. The example here is simply class. Class is the most important. There is a achieve status here. And the let see a next types here. The next is crab status here. That's important. It is assigned to be us on the basis of birth and biological inheritance, parents, status, etc. You know that this is a birth here. There is a status here, basis of birth and biological inheritance and parents, status here, etc. A person does not be choose this status. A person does not be choose this status, and it is difficult to change status. That's the most important here. It is difficult to change the status.
It play an important role in traditional society. It's a play an important role in a traditional society. Example, caste. Caste describes status because there is a basis of birth. That's important here. The next year, multiple status and status progressions here. That's important. Multiple status and status progressions here. That's important. In a modern complex society such as ours, an individual may occupy multi-status during the course of his or her life. That's important. They occupy the multiple status during the course of his or her life. This is a sociologically term as a status set here. This is a sociologically terms as a status set here. For example, you as a school student may be a student for your teacher, a customer to your gracious as a passenger to the bus driver, a brother or sister to your siblings, and a parent to the doctor. That's an important example here. You as a school student may be a student for your teacher, a customer to your gracious, and the passenger to the bus driver, a brother or sister to your siblings, and the patient to be a doctor. That's an important example. An individual also acquire different status as a various stage of life. That's important. There are different status as the various stage of life. This is called a status sequence. What is referred to their status, which is a turn in the successions and sequence at the various stages of life. For example, a son become a father, a grandfather, and then great grandfather, and so on. That's the most important. The son become a father, a grandfather, and then a great grandfather, and so on. That's an important example here. The next here is status and prestige here. That's important. Status and prestige here. Status and prestige are interconnected term. Every status is accorded contain a right and value. That's important. And value are attached to the social position rather than to their person who occupy it, or to his her performance, or to his her action. That's important. There is a person who occupy its performance and action. The kind of value attached to be a status or to the office is called prestige. You know that the kind of value attached to be a status or to be office is called prestige here. That's important. The next here, role and role playing. That's important. Role and role playing here. A role is the dynamic or the behavioral aspect of the status. The role is a dynamic here. People perform there is a roles according to the social expectation associated with their status that she occupy. That's important. This is referred to as a role taking or role playing, and those roles are played to the accordance with the status. For example, the example is the most important here. A child learns to behave in accordance with how her behavior will be seen and judged by the other. That's important here. With how her behavior will be seen and judged by others. The next here, role conflict here. That's important. Role conflict here. When there is a incompatibility among the roles corresponding to the multi-status, it is referred to as a role conflict here. That's important. Corresponding to the multi-status here. And there is an incompatibility here. It occurs when to the contrary conceptions arise from the two or more role to be performed. There is a two or more roles to be performed here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनके उपयोग।
ये कक्षा 11वीं CBSE NCERT के अंतर्गत समाज शास्त्र का जो है टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है हम पॉइंट व्यू यहाँ कर रहे हैं जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें हम स्थिति और भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। तो अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए अगर हम स्थिति और भूमिका की बात करें तो स्थिति यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति किसी समूह या समाज में रहता है। देखिए, आप किसी भी समाज में रहते हो, आपकी क्या स्थिति है वहाँ पर, वो स्थिति निर्धारित करती है कि आपको किस प्रकार का सम्मान मिलेगा। प्रत्येक स्थिति के कुछ परिभाषित अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अगर आपको कुछ स्थिति मिली है तो उसका कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य होगा। जैसे आप स्थिति के उदाहरण ले सकते हो कि एक डॉक्टर हो गया, माँ, शिक्षक, सबका अपना अपना स्थिति होता है समाज में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है जिसे आप क्लियर कर सकती हो कि डॉक्टर, माँ, शिक्षक ये सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें हमें हमारी स्थिति का जो है पता लगता है कि समाज में हमारी क्या भूमिका है, क्या स्थिति है और हम किस स्थिति को बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो स्थिति को दो प्रकार से यहाँ वर्गीकृत किया गया है। पहली स्थिति है निर्धारित स्थिति और दूसरा है प्राप्त स्थिति। निर्धारित जो हमें जन्मजात मिलती है और प्राप्त स्थिति जो हम अपने जीवन में अचीवमेंट करके हासिल करते हैं। चलिए इसी पे हम विस्तार पूर्वक और जानें और समझें। तो पहले की अगर हम बात करें तो अर्जित यानी प्राप्त स्थिति। अर्जित जो आप अपने जीवन काल में प्राप्त करते हो और वो भी मेहनत करके अपनी क्षमताओं के अनुसार, तो इसे हम अर्जित भी कह सकते हैं या प्राप्त स्थिति भी कह सकते हैं। हिंदी के शब्द बहुत सारे होते हैं, इसलिए बहुत से कन्फ्यूज़न भी हिंदी वाले बच्चों के लिए रहता है। इसलिए यहाँ पर अर्जित और प्राप्त स्थिति दोनों को दिए गए हैं। हर जगह आपको दिख जाएगा अर्जित। तो देखा जाए तो अर्जित जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा योग्यता और प्रयास के आधार पर हासिल किया जाता है। जो व्यक्ति जितना प्रयास करता है, जितनी उसकी योग्यता होती है और जितना वो संघर्ष करता है, उतना ही समाज में उसको जो है प्राप्त होती है, और ये सब अर्जित के अंतर्गत आता है। यह व्यक्ति के पसंद पर भी आधारित होती है कि आप जैसा चाहो वैसा फील्ड में अपने आप को ले जा सकते हो। ठीक है, जो आप अगर मेहनत करते हो तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो, वकील भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो ये सब आप पे निर्धारित करती है कि आप कैसा प्रयास करते हैं, और यह व्यक्ति के पसंद पर आधारित होती है। आप जैसा पसंद करोगे वैसा आप यहाँ पर अपने जीवन में अर्जित कर सकोगे। जैसे कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सिपाही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आगे की पसंद बता रहा है और ये पसंद को पूरा भी कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जाति नहीं आती है। हम जाति के आधार पर नहीं है, ये अर्जित के आधार पर है। और यह योग्यता आय अधिक को बदल भी सकता है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपनी आय को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि जितना अधिक अच्छा कार्य कीजिएगा योग्यताओं के अनुसार, उतनी ही आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये अर्जित के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो आधुनिक समाज में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आधुनिक समाज है तो आधुनिक समाज में हर तरफ देखा जाए तो लोग हर चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, और उसे अर्जित के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये प्राप्त करना होता है जिसके बाद जितनी क्षमता होती है, मेहनत करता है, उतना ही उसको अर्जित भी होता है। अगर एग्जाम्पल हम सबसे महत्वपूर्ण देखें तो कक्षा यानी क्लास। क्लास का अर्थ यहाँ पर कक्षा बेशकली दी गई है, लेकिन यहाँ पर है कि आप किस क्लास में बिलोंग करते हो, मिडल, अपर, लोअर, किस क्लास से आप बिलोंग करती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप जितना मेहनत करोगे उसी प्रकार के आपको जो है क्लास भी प्राप्त होगा। अगर आप अच्छे मेहनत करने वाले हो, बहुत काफ़ी कड़ी मेहनत करने वाले हो, तो आपको जो है अपर क्लास मिलेगी। अगर आप कम मेहनत करने वाले हो तो आपको मिडिल क्लास मिलेगी। अगर आप बिल्कुल ही नहीं करते हो मेहनत तो आपको लोअर क्लास मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें जो है अपनी योग्यता के अनुसार हमें समाज में सम्मान, रुतबा, पैसा प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं जन्मजात किस चीज़ पे आधारित होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रदंत यानी निर्धारित स्थिति। प्रदंत जो होती है हमें जन्मजात प्राप्त होती है,
और इसको आप बदल नहीं सकती, बहुत मुश्किल होता है बदलना। ऐसे तो आज आधुनिक युग में लोग अपने जाति भी बदल देते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर बात होती है। ये प्रदंत है और इसे हम बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। यह हमें जन्म और जैविक विरासत, माता पिता की स्थिति आदि के आधार पर हमें सौंपा गया है कि हम जैसे जिस घर में जन्म ले लेते हैं हम उसी जाति धर्म के हो जाते हैं। तो ये प्रदंत होते हैं और ये माता पिता की स्थिति पर निर्धारित होती है कि हमें कैसा जो है मिला है। कोई व्यक्ति इस स्थिति को नहीं चुनता है, यानी हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते हैं, हम तो जहाँ चले जाते हैं वहीं पे हम हो जाते हैं। यानी व्यक्ति जो है ये स्वयं नहीं चुनते हैं और स्टेटस बदलना मुश्किल है। देखा जाए तो प्रदंत जो है बदलना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसको हम आसानी से नहीं बदल सकती। लेकिन आधुनिक समाज में देखने को मिला है कि लोग अपनी जाति भी बदल लेते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ है और यह पारंपरिक समाजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। देखा जाए तो प्रदंत जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं हमारे देश में जाति प्रथा थी, इन्हीं कारणों से हमने जो है अपनी जाति नहीं खोई, क्योंकि इसको बदलना आसान नहीं था। नहीं तो हमारे देश में मुग़लों ने भी राज किया, अंग्रेज़ों ने भी राज किया और कहते हैं विदेश से आए लोगों ने भी राज किया, लेकिन हमारी जाति स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हमने अपनी जाति को नहीं छोड़ा। नहीं तो यहाँ पर सभी जो है धर्म बदल गए होती। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रदंत के कारण होता है कि लोग समझते हैं कि उनका जहाँ जन्म हुआ है वही उनका धर्म है और उसी रिगार्डिंग वो चलते हैं, क्योंकि वही उनको जात होती है। और ये जैविक विरासत के रूप में देखा जाता है, जिसमें माता पिता की स्थिति के कारण उनको ये मिलता है और इसको हम बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकाधिक स्थिति या प्रगति स्थिति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि एकाधिक स्थिति और प्रगति स्थिति क्या है। हमारे जैसे आधुनिक जटिल समाज में एक व्यक्ति अपने जीवन के दौरान कई स्थितियों पर कब्जा कर सकता है और इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको। देखा जाए तो एक व्यक्ति जो है कई स्थिति पर कब्जा कर सकता है। आज पॉलिटिकल पार्टियों में देखिए एक नेता जो है कई स्थिति को प्राप्त करता है। एक ही व्यक्ति रेल मंत्री भी होता है, विदेश मंत्री भी होता है, खाद्यान्न मंत्री भी होता है। अगर आपको ये गलत लग रहा हो तो आप रिसर्च करके देख सकते हो कि एक मंत्री के अंतर्गत कितने विभागों को सौंपे गए हैं। तो ये हमारे आधुनिक जटिल समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति पर जो है सारी जिम्मेवारी डाल दी जाती है, चाहे वो जिम्मेवारी निभाए चाहे न निभाए। तो एक व्यक्ति का अपने जीवन के दौरान कई स्थितियों पर कब्जा कर सकता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन के दौरान आप कई स्थितियों पर कब्जा करते हैं। जैसे आप जन्म लेते हो तो आप किसी के बच्चे होते हो, जब आप बड़े होते हो तो आप किसी के शिष्य हो जाते हो, जब और भी बड़े होते हो तो आप किसी के पति बन जाते हो, जब और बड़े होते हो तो आप किसी के फादर बन जाते हो, उसके बाद और बड़े होते हो तो आप ग्रैंडफादर भी कहलाते हो, इवन एम्प्लॉयज़ भी कहा जाता है। तो कई जीवन के दौरान कई स्थिति पर कब्जा कर सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसे समाज शास्त्रीय रूप से स्टेटस कहा जा सकता है, इसे हम स्टेटस कहते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूली छात्रा के रूप में आप अपने शिक्षक के लिए एक छात्र हो, यानी एक स्कूल छात्र के रूप में आप अपने शिक्षक के लिए एक छात्र हो, आपने किराए की दुकान के लिए एक ग्राहक हो, बस चालक के लिए एक यात्री हो और अपने भाई बहन के लिए एक भाई या बहन और डॉक्टर के लिए एक मरीज हो सकती हो। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जैसे आधुनिक जटिल समाज में एक व्यक्ति अपने जीवन के दौरान कई स्थितियों पर कब्जा कर सकता है, एक संबंध के रूप में और एक कार्य के रूप में। कार्य में मैंने राजनीति की बात बताई और जो जीवन के रूप में है वो आप समझ सकते हो कि आपके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। जनरल सी बात समाज के अंतर्गत भी हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आप एक छात्र हो तो इसका मतलब है कि आप एक किसी शिक्षक के छात्र कहलाओगे। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो दुकान के ग्राहक कहलाओगे, बस में बैठते हो तो बस चालक के यात्री कहलाओगे, अपने भाई बहन के लिए भाई बहन कहलाओगे और डॉक्टर के लिए एक मरीज कहलाओगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। व्यक्ति जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग स्थिति भी प्राप्त कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न चरणों में अलग अलग स्थिति भी प्राप्त कर सकता है। इसी स्थिति के
क्रम कहा जाता है, क्योंकि यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जो जीवन के विभिन्न चरणों में उत्तराधिकारी या अनुक्रम में प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो जीवन के विभिन्न चरणों में अधिकार या अनुक्रम से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक बेटा पिता, दादा और फिर परदादा इत्यादि बनता है। तो आप समझ सकते हो कि ये उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक बेटा जो होता है कभी पिता बनता है, फिर दादा बनता है, फिर परदादा बन जाता है। तो ये विभिन्न चरण हो सकते हैं। उसके पश्चात करें बात तो स्थिति और प्रतिष्ठा। कहते हैं स्थिति और प्रतिष्ठा काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द प्रणाली है और ये शब्द है जो एग्जाम में काफ़ी देखने को मिल रहा है। स्थिति और प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं। पद और प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। प्रत्येक स्थिति को कुछ अधिकार और मूल्य दिए जाते हैं, यानी कुछ परिस्थिति होते हैं या कुछ स्थिति होती है जिनमें एक अधिकार और मूल्य किसी व्यक्ति को दिया जाता है। मूल्य सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। मूल्य जो होते हैं सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं, न कि इसे धारण करने वाले व्यक्ति या उसके प्रदर्शन या उसके कार्य से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मूल्य सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं, न कि इन धारण करने वाले व्यक्ति या उसके प्रदर्शन या उसके कार्य से। पद या पद से जिस प्रकार मूल्य जुड़ा होता है उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे आपको समाज में क्या प्रतिष्ठा हासिल है, और ये हासिल तब होगा जब आपकी अच्छी भूमिका होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति को समाज में प्रेस्टीज तब मिलती है, प्रतिष्ठा तब मिलती है जब वो उच्च पद पे हो, जिस कारण उसको मूल्य काफ़ी बढ़ जाता हो, तब समाज जो है उसको जो है प्रतिष्ठा देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति जो है प्रतिष्ठा के लिए ही समाज में कार्यरत होता है और हर व्यक्ति का यही होता है कि वो सही से सही कार्य करे, जिससे जो है समाज में किसी प्रकार का जो है उसका प्रतिष्ठा पर जो है गलत शब्द का उच्चारण न किया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात आता है भूमिका और भूमिका निभाना। देखिए भूमिका यानी देखा जाए तो क्या भूमिका है, क्या रोल है, काफ़ी महत्व रखता है। भूमिका स्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। भूमिका जो है गतिशील या व्यवहारिक पहलू को कहा जा सकता है। लोग अपनी स्थिति से जुड़े सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि लोग अपनी स्थिति से जुड़े सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने भूमिका निभाते हैं और उनको भूमिका निभाना एक महत्वपूर्ण बात रखता है समाज में, क्योंकि उनकी भूमिका से ही समाज का निर्माण भी होता है। इसे रोल टेकिंग या रोल प्लानिंग कहा जाता है और इस प्रकार भूमिका स्थिति के अनुसार निभाई जाती है। यानी आपको कैसी भूमिका दी गई है उसी के अनुसार आपको जो है अपनी स्थिति को निभाना पड़ेगा। कहते हैं अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे और अपनी भूमिका निभाए तो समाज में कभी भी गलत नहीं होगा और हमारा समाज जो सुचारू रूप से कार्यरत रहेगा। देखा जाए तो उदाहरण के लिए एक बच्चा उसके व्यवहार के अनुसार व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे उसके व्यवहार को कैसे देखेंगे और आंकेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह उदाहरण है कि एक बच्चा उसके व्यवहार के अनुसार व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे उसके व्यवहार को कैसे देखेंगे या आंकेंगे। तो महत्वपूर्ण यह बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भूमिका के लिए संघर्ष। भूमिका के लिए संघर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है शब्द। जब कई स्थितियों के अनुरूप भूमिकाओं के बीच असंगतता होती है तो इसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। यानी आपको भूमिका मिला है लेकिन भूमिका के अंतर्गत कई जो है असंगतता आ गई है, कई गलत बातें जुड़ गई है, तो इसके अंतर्गत आपको कई संघर्ष करना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कि कुछ उसको अधिकार मिला है, कुछ भूमिका मिला है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, तो उस भूमिका के अंतर्गत उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। यह तब होता है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं को निभाने से विपरीत अपेक्षा उत्पन्न होती है। यानी ये तब संकट उत्पन्न होता है जब आपको दोहरा जो है यहाँ पर भूमिका निभाने की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं एक भूमिका लोग सही से नहीं निभा पाते हैं तो दो भूमिका कहाँ से निभा पाएंगे। तो ऐसी संघर्ष तभी बनता है जब आपके पास एक से अधिक भूमिका
हो। आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा कि जो हीरो होता है उसको दो चीज़ों में से एक को चूज़ करना पड़ता है, या तो वो परिवार को चुनता है या अपने प्रेमी को चुनता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या उस समय खड़ी हो जाती है। उस समय कहते हैं संघर्ष में जो है ऐसे संघर्ष करनी पड़ जाती है जहाँ पर उसको दोनों को ही बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है एग्ज़ाम व्यू से देखा जाए तो। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला पॉइंट कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपान स्टडी सेंटर का मदद कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है दूसरे बच्चों को भी वीडियो मिलेगा और वो भी लाभान्वित होंगे और ये सब आपके अंतर्गत ही होगा। तो इसलिए आप सोचिए नहीं, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के सारे वीडियो आसान रूप से उपलब्ध हो जाएंगे प्लेलिस्ट पे। तो आप एक बार जब त्रिपान स्टडी सेंटर से जुड़िएगा तो कई सालों तक जो त्रिपान स्टडी में बने रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।